Good morning, students. Today we will see the numericals of the effects of electric current. Now see here I have written the formulas. First is the electric power. ये जो formulas है already in the previous video we have seen the proof H is equal to I square RT. वो proof करने के लिए starting कहाँ से किए थे electrical power से. So from this formula only we have to see. क्या था फॉर्मूला V इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज द चार्ज, T इज द टाइम. बट Q अपॉन T मीन्स I होता है. सो इंस्टेड ऑफ Q अपॉन T हियर रिटन I. डिपेंड ऑन द गिवन इन द क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज. देन एज वी नो द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. यहाँ से अगर I की वैल्यू लिखते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर. सो क्या करना है, P इज इक्वल टू वी आई है. इस I में अगर V अपॉन आर की वैल्यू पुट करते हैं, सो P इज इक्वल टू वी आई मीन्स V अपॉन आर. सो हियर वी गेट दी V स्क्वायर अपॉन आर. ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला. मीन्स हियर वी हैव दी थ्री फॉर्मूलाज, दैट इज P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू वी आई, एंड थर्ड वन इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर. Now next is the heat. Heat का फॉर्मूला क्या है? We have seen the Joule's law of heating. क्या है फॉर्मूला? H is equal to I square RT. Now see here again same. This one is the Ohm's law only. Ohm's law क्या है? V is equal to IR. I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V upon R. If we put this value here, so what will we get? I square है. I means V upon R. So V upon R whole square, and this one is the RT. Now we open the bracket, V square upon R square into RT. R get cancel, square है means यहाँ पे एक R बचेगा, V square upon RT. See here formula, H is equal to V square T upon R. So this one is the second formula of the heat. Now see, ये तो हो गए formulas, but in the question whatever the given are there, confusion कहाँ होता है, वैल्यू किसकी क्या है. ओके, सो हियर यू हैव टू ऑलवेज सी द यूनिट. सो पावर का यूनिट क्या है? वैट रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, करंट रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर, टाइम इट मे बी आवर्स, इट मे बी सेकेंड और इट मे बी मिनट्स. देन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी और उसका यूनिट भी क्या है? वोल्ट. रेजिस्टेंस ohm represented by this symbol, and the unit of heat is the joule represented by J. Now we'll see the some numerical, some example will. Now see here numerical is written. An electric bulb is connected to 250 volts. If the current of 0.5 ampere passes through it, what is the power of the bulb? Now first of all we'll write the given. As I told you the units, 250 volt. Volt means volt किसका unit रहता है? That is the potential difference. Okay, so here I am writing potential difference, that is V is equal to 250 volts. Then 0.5 ampere. Ampere किसका unit है? Current. So current I 0.5 ampere. What is the power of the bulb? So power P we have to find out. Now see here in which formula potential difference and current is given, means V and I. So as I told you the formulas, which one? P is equal to VQ upon T, P is equal to VI, P is equal to V square R. So we have the three formulas. Out of these formulas, which formula having the V and I? That is the P is equal to V I. Okay, now here put the value. This one is the solution. So power पता नहीं है, वो हमको find out करना है. V कितना है? That is 250. 250 into I 0.5. Now multiply it. 250 into 0.5. 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11, 12. 1250.
नाउ हियर डेसिमल पॉइंट है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है, सो आई विल पुट हियर. सो व्हाट इज द आंसर? 125. 125 is the answer. Now what is the unit of power? That is the unit of power is watt represented by W. So this is the answer. So power of the bulb is 125 watt. Now next numerical. A 6 meter long wire made from an alloy nichrome is shaped into a coil. क्या है? 6 मीटर लॉन्ग वायर है, किससे बना है, कौन से अलॉय से? दैट इज दी नाइक्रोम, जिसे कॉइल शेप में रखा है. एंड गिवन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग हीट, एंड हीट इज प्रोड्यूसिंग. इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ohms. वहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है? दैट इज दी 24 ohms. कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट? अगर वायर को कट कर दिया, 6 मीटर है, मीन्स उसे अगर कट कर दिए, हाफ कर दिए, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी क्या? दिस इज द क्वेश्चन. इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल, मीन्स उसे अगर कट कर दिए और फिर से उसे कॉइल के फॉर्म में यूज किए, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी क्या? फॉर गेटिंग एनर्जी द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स विद अ पोटेंशियल. और वो जो वायर रहेगा फिर से उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है टू गेट दी पोटेंशियल. नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन. सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे. 6 मीटर लॉन्ग वायर, दैट इज द लेंथ. हमें इसका यूज नहीं रहेगा, बट स्टिल. नाउ सी हियर रेजिस्टेंस हियर, दैट इज द 24 ohms. रेजिस्टेंस 24 ohms. Then potential, हाँ. Now see here, अब यहाँ पे potential given नहीं है, but we have seen in the previous video only. potential difference जो रहता है वो कितना रहता है? 220 वोल्ट रहता है. हम लोगों ने ये किस में पढ़े थे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज 220 वोल्ट ही रहेगा. सो हियर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, इट विल बी 220 V. नाउ हाउ टू सॉल्व. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? अगर वायर को कट कर दिए, अगर उसे हाफ कर दिए, तो वो हाफ करने के बाद उसमें कितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा या नहीं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट दी दैट इज द कॉइल ऑफ होल वायर. मीन्स यहाँ पे जो पावर रहेगा, इलेक्ट्रिक पावर, वो जब पूरा होल वायर है, 6 मीटर का वायर है, अगर ये पूरा वायर अगर यूज करता है तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा पावर. और जब इसे हाफ कर देता है, इफ वी टेक दी 3 मीटर, so how much power it will produce, so that we have to find out. So सबसे पहले coil of whole wire, it means here we have to find out the power P, find out करना है यहाँ पे power we have to find out. अब पावर का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस दैट इज R और पोटेंशियल डिफरेंस V है? कौन कौन से फॉर्मूलेज है अपने पास? दैट इज P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी. सेकेंड था P इज इक्वल टू वी आर, एंड थर्ड वन इज दी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर. नाउ सी हियर वी स्क्वायर आर, V भी अपने पास, रेजिस्टेंस R भी है, सो विल पुट द वैल्यू हियर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर. अब यहाँ पे V स्क्वायर है, V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है? दैट इज 220 स्क्वायर, and here 24. Now if we calculate this, so 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0. Okay, now again now here 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0.
Now here we have 110 into 110 upon 6. Again 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 5s are 10. Okay. Now here we'll multiply this to 55 into 110. 110 into 55. 6050. Okay, divided by 3. So here we get the 6050. Now we have to divide it by 3. So 6050 divided by 3. 3 2s are 6. 0 0 comes down, तो से यहाँ 0 आएगा, ये 5 आया, 3 1s are 3, 4 5 2, then 3 6 are 18, 3 6 are 18, 19 20, and point here, then again 6 means 2016.6. Okay, so here is the answer, 2016.6, that is power, unit of power, watt. So this is the first, that is the coil of full wire, कितना है 2016.6. Now we'll see the second, that is the coil of half wire. पहला कितना है 2016.6 watt. Now next is the coil of half length wire, half wire. Again formula same, P is equal to V square upon R. Now see here, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हाफ वायर लेना है. हाफ वायर लेंगे मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा. यहाँ पे पूरा फुल था, सो दैट्स वाई हियर वी हैव टेकन दी 24 ओम. अब यहाँ पे हाफ लिया है, सो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम रहेगा. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट दिस इन द 9th स्टैंडर्ड. वी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, अगेन 220 स्क्वायर. नाउ रेजिस्टेंस 12 रहेगा, 24 के हाफ 12. सो 220 इंटू 220 अपॉन 12, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0. Now 110 into 110 divided by 3. So what will be the answer? 110 into 110. 12100 divided by 3. Now we'll divide this 12100 divided by 3. 3 4s are 12. Then this one comes down. 1 आया, होगा नहीं divide. So again this 0 will be here. 3 3s are 9. 1 again same. Okay. Now after this point means here is the answer 4033.3, and this one is the watt. Now coil of half wire कितना प्रोड्यूस कर रहा है पावर, दैट इज दी 4033.3. एंड हियर जब कॉइल ऑफ पूरा फुल वायर था उसमें कितना प्रोड्यूस किया, 2016.6 watt. इट मीन्स दैट when there is a half wire, वायर जब हाफ है तब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. सो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस, more heat will be produced after cutting the wire into half. जब उसे हाफ किए तब वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cell is connected to a
9 ohm resistance. 9 ohm resistance means R. R कितना दिया है? 9 ohm. Because of which heat of 400 joule is produced. अब यहाँ पे हीट जो है 400 जूल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. सो हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस, दैट इज द पावर. हाँ, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड लिखा है. सो P इज इक्वल टू 400 जूल पर सेकेंड. सो दैट्स वाई हियर रिटन 1 सेकेंड. पर मीन्स 1 ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. सो कितना हीट प्रोड्यूस किया मीन्स पावर कितना जनरेट हुआ है, दैट इज द 400 जूल per second. Obtain the potential difference. Potential difference, that is the V. We have to find out. Obtain the potential difference applied across the resistance. So we have to find out the potential difference. अब कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है? We have the formula, that is P is equal to V square upon R. यह है अपना फॉर्मूला. Here written 1 second. So instead of this 400 जूल पर सेकेंड ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज 1 सेकेंड ओनली. अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू रहती तो कैलकुलेशन किया रहता, बट हियर 1, सो डायरेक्टली इन 400 जूल पर सेकेंड वी कैन राइट. अब पावर की वैल्यू 400 है. वी डोंट नो पोटेंशियल डिफरेंस R 9. वी हैव टू कैलकुलेट दी V स्क्वायर. So V square is equal to 400 into 9. We can multiply and we will get the answer. लेकिन वो आंसर क्या रहेगा? V square का रहेगा. We have to find out only V. V निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. So that will be more complicated. So we can do the simple way. V is equal to, यहाँ पे V square है, we require the V. It means that we have to take the square root. So by taking square root 400 into 9. 400 का स्क्वायर रूट क्या आता है? दैट इज 20. एंड स्क्वायर रूट ऑफ दी 9, दैट इज 3. नाउ हियर वी गेट दी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज दी 3 to the 6, 60 वोल्ट. सो दिस इज दी पोटेंशियल डिफरेंस. आंसर इज 60 वोल्ट. मीन्स यहाँ पे 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज हुआ है. Now the next numerical. An electrical iron uses a power of 1100 watt when set to higher temperature. जब higher temperature set करता है तो कितना पावर होता है वहाँ पे? That is the 1100 watt. Is set to lower temperature. When the temperature decreases, it uses 330 watt. That is 330 watt power use होता है. Find out the electric current एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द 2 सेटिंग्स. मीन्स ये 2 सेटिंग्स जो है, दो अपने को 2 वैल्यूज दी है पावर की. सो दोनों पावर में करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितना यूज हो रहा है एंड द रेजिस्टेंस, दैट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट. द आयरन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220. पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज गिवन 220. नाउ सी हियर विल राइट द गिवन. अब यहाँ पे पावर 2 है. So here we'll mention the power A and B. So power P. Okay. So for A का कितना है? 1100 watt. And second one is the power P, that is B. कितनी वैल्यू है? That is the 330 watt. Potential difference दोनों की के लिए सेम ही रहेगा, that is 220 वोल्ट. हियर इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सेम रहेगा. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? करंट. ए का करंट निकालना है एंड बी का भी. इन द सेम वे रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन इज ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट एंड दिस वन ऑल्सो भी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, पहले अपन करंट फाइंड आउट करेंगे जिसमें पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड आयरन, सॉरी करंट इज देयर. ओके, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज देयर. सो वी हैव द फॉर्मूला दैट इज द P इज इक्वल टू V I.
सो फ्रॉम दिस हमें I फाइंड आउट करना है, P अपॉन V लिख सकते हैं. सो I इज इक्वल टू P अपॉन V. नाउ पुट द वैल्यू. क्या होगा? P कितना है? 220. सॉरी, P 1100 1100 upon 220. 0 get cancel. We have the 110 upon 22. Now 11 1 से 11 होता है और यहाँ 0 है. So 11 1 से 11, that is the 10. और 11 2 से 22. So 10 upon 2. 10 upon 2 कितना आएगा? That is 2 5 से 10. 5 एम्पियर हुआ. Okay, now I am writing here directly. Calculation रब कर देती. So here we have the 5 एम्पियर. करंट कितना प्रोड्यूस किया है? फर्स्ट जिसमें पावर 110 वैट है, that is the 5 एम्पियर. Now we'll find out, here only we'll find out the resistance. R भी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं. अब R कौन से फॉर्मूले में है? Now see here, करंट जो लिया है, करंट 5 एम्पियर आया है. हम लोगों को रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन दिस करंट. ये 5 एम्पियर का यूज करके ही हमें फाइंड आउट करना है. सो इन विच फॉर्मूला करंट एंड रेजिस्टेंस आर देयर? सी ओम्स लॉ. ओम्स लॉ है अपने पास. ओके, ओम्स लॉ क्या है? दैट इज द V इज इक्वल टू I R. सो वी हैव टू फाइंड आउट द R. सो V अपॉन I. Now potential difference कितना है? That is the 220 and I now only we have find out 5. कितना होगा? 5 4 जा 20. Again 5 4 जा 20. 44 हो गया. Unit of resistance is ohm. So here we have to use the means यहाँ पे अपन ने ohms law क्यों यूज किया? हम लोगों को अभी यहाँ R फाइंड आउट करना है. R का फॉर्मूला पावर से भी है. पावर के इसमें है ना, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. हम लोगों के पास V भी है, P भी है. R फाइंड आउट करना था, बट वी कांट यूज दैट. वाई? क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें करंट चाहिए. करंट मीन्स हम लोगों को कितना ये जो 5 एम्पियर जो आया है, इसमें कितना रेजिस्टेंस है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द ओम्स लॉ. नाउ इन दिस सेम वे सेकंड B पोर्शन, अगेन सेम पावर वी हैव टू फाइंड आउट. P इज इक्वल टू VI. So we'll write I is equal to P upon V. P कितना है? That is 330 upon 220. This one is very simple. 11 2s are 22. 11 3s are 33. 2 से डिवाइड करो. 2 1s are 2. 2 5s are 10. 1.5 आ गया. करंट का यूनिट एम्पियर. Now next is the we have to find out the resistance. So we require this current only. तो हम लोग कौन सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे? That is Ohm's law. R is equal to V upon I. It becomes V कितना है? That is 220. I 1.5. Okay. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 1.5 है, डिवाइड करो. ओके, यू विल गेट द आंसर. या फिर यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के कारण प्रॉब्लम होता है. डेसिमल हटा दो. डेसिमल अगर यहाँ से हटा देते हैं तो ऊपर यहाँ पे 1 डिजिट के पहले है डेसिमल पॉइंट. ओके, 1 डिजिट के पहले डेसिमल है. सो यहाँ पे अगर डेसिमल हटाना है तो 1 डिजिट के पहले है, तो यहाँ पे 1 डिजिट बढ़ जाएगा ऊपर. 1 डिजिट के पहले अगर डेसिमल आता है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा. ओके, सो हियर 2200 डिवाइडेड बाय 15. ये हो गया अपना कैलकुलेशन. सो 15 से अगर इसे डिवाइड करते हैं क्या होगा? 2200 डिवाइडेड बाय 15. 15 2 जा 30 होता है. सो दैट्स व्हाई 15 1 जा 15. 22 minus 15 7. Now this 0 comes down. 15 2 जा 30. 15 4 जा 60. Okay. Now here is it. Then क्या आएगा? 15 4 जा 60.
75, 15 6 90, 15 6 90 होता है. So here 6 90. Again here 10 और बढ़ेगा, यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ 100. Again 15 6 90. It will be continue. So the answer is 146.6 ohms. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ohms. So सेकेंड में रेजिस्टेंस कितना आया है? 146.6 ohm and in the first case it is 44 ohm. Now see the next. If 240 joule heat is generated, joule is given, so heat का symbol joule रहता है unit, so H is equal to 240 joule. Now see here, then resistance, if 240 joule heat is generated in a conductor of resistance 50 ohm, resistance कितना दिया है? 50 ohm, so R is equal to 50 ohm. When 0.2 ampere current is passed through it, उस कंडक्टर में ऐसे कितना करंट ट्रैवल हो रहा है? दैट इज 0.2 एम्पियर. देन फॉर हाउ लॉन्ग इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मीन्स कितने टाइम तक, जब रेजिस्टेंस 50 ओम है, हीट 240 जूल है, तो वहाँ पे कितना करंट, कितने टाइम तक करंट फ्लो होते रहेगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट दी हाउ लॉन्ग रिटर्न, लॉन्ग दैट इज द टाइम ओनली, वी हैव टू फाइंड आउट दी टाइम. अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है? हीट है, रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम. So which formula we have to use? So that is the H is equal to I square RT. So here we have to use the H is equal to I square RT. H given है, I given है, R given है, T we have to find out. T we have to find out. तो ये दोनों वैल्यू हीट के डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So it becomes T is equal to H upon I square R. Okay. Now here we'll put the value H, that is 240. Okay, joule will not write, 240. Then I square कितना है? Current, that is 0.2 square. R कितना है? 50. Now 0 get cancel, 0 cancel हो गया. Then 24. 0.2 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जा 4, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा. डेसिमल 1 डिजिट के पहले है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के पहले है, दैट इज टोटल 2 हो गया. ठीक है, इट मीन्स दैट 2 डिजिट के पहले आएगा डेसिमल. सो 1 2 देन हियर 0. ओके, सो हियर 0.2 का स्क्वायर कितना है? 0.04 इंटू 5. अब क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के पहले है, डेसिमल हटा दो, या फिर डायरेक्टली 0.04 को 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 4 जा 20. 2 डिजिट के पहले है डेसिमल, यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले आ जाएगा. ओके, सो बेटर वे अपन ऐसे करते हैं, डेसिमल यहाँ का हटा दो, क्या मिलेगा? 24 है. 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, पॉइंट अगर निकाल लिए 2 डिजिट के पहले है तो यहाँ ऊपर 2 zeros आ जाएंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड हियर इज दी 5. ओके, सो ये 2 0 कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ से अपन ने 2 डिजिट के पहले डेसिमल था, डेसिमल पॉइंट हटा दिए, 2 डिजिट्स थे इसलिए ऊपर 2 डिजिट्स बढ़ गए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस. 2 4 0 0, 5 4 जा 20, 0 get cancel, 240 upon 2. So क्या आएगा आंसर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0. ठीक है, ये हो गया अपना टाइम, दैट इज 120. और टाइम का यूनिट क्या रहता है? सेकेंड. सो हियर इज द सेकेंड. सो कितना टाइम तक वहाँ पे करंट फ्लो होते रहेगा? टिल 120 सेकेंड. या इसे तुम लोग मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट लेट इट बी सेकेंड में ही इसे सॉल्व करोगे. सो कितना करंट, 0.2 एम्पियर करंट कितने देर तक ट्रैवल करेगा? टिल 120 सेकेंड.